Sure. I think mask तो निकाला जा सकता है. Sure. So, friends, I am Dr. A.K. Vishwakarma, Principal Scientist from Indian Institute of Soil Science, Bhopal. Our institute is one of the most important institute in the country which is working on soil, different aspects of soil, soil fertility and management. And today's topic that is vermicompost production technology. It is another important topic in terms of soil fertility management, but the process of compost preparation itself is a very scientific method and requires knowledge and expertise to practice these technologies or practices, so that the entrepreneur or the person who is practicing vermicomposting will get good quality compost, as well as be able to get benefit both in terms of monetary benefits, or you can say the quality of compost. All those things should be obtained, and the thing is that he can also earn money from selling worms if one is capable and has developed expertise to practice vermicomposting. He may be able to earn a lot of money through this business. But the thing is that you need to practice it very scientifically. So we will discuss in this lecture. I will try that you will get best knowledge you can share with me, and you can share your experiences, or you can share your queries also in the session. And I will try that whatever expertise I have gained over years, I'll share with you. Okay, so friends, we know that vermicompost is a technology, and a famous saying by Charles Darwin is that all the fertile areas of this planet have at least once passed through the bodies of earthworm. So wherever fertile soils are there, there must be earthworms existing. That's a very famous saying in agriculture that has been quoted by Charles Darwin. And vermicomposting, if it's vermicomposting, it is a process of converting organic waste into manure which is rich in nutritional content, and done with the help of earthworms. So that is the process of vermicomposting. And people often confuse with vermiculture, vermicomposting, different terms are there. So there is slight difference between vermiculture and vermicomposting. So vermiculture means worm farming, in which earthworms are fed on organic waste materials and give out excreta in the form of vermicasts, which are rich in nutrients like nitrates, phosphorus, magnesium, calcium, and potassium. But the main target under vermiculture is to multiply worms. And vermicomposting, when we say vermicomposting, it is a scientific method of making compost. In vermicomposting, our main emphasis is on preparation of compost by using earthworms and by feeding them on organic biomass
and they excrete it in the digested form. So that digested material becomes the compost. So that's a slight difference between vermiculture and vermicomposting. So friends, we have in India we have lot of waste material available. Either it is in cities, or if you go in rural areas, agriculture, wherever we go, there is lot of waste available, and everywhere there is a problem of dumping this huge waste materials. In the cities there is a problem. In the farmlands, farmers are burning crop residues or waste material, and so on. So, let us take example of agriculture. So this year we are expecting a food grain production of almost 303 million tons. So when we say this much food grain production we are going to do, it means that almost double this amount we are going to produce residue also. So almost 600 million tons of crop residues will also be generated. And you might have heard that lot of burning issues are coming, that farmers are burning crop residues, lot of smog is there due to crop residue burning and all those things. So why these things are happening? People are aware that a lot of problems are there. We are releasing carbon in the atmosphere. You know, if you burn 1 ton of crop residue, almost 400 kg of carbon dioxide we are releasing in the atmosphere, besides many other nutrients content in the residues. So that's a very huge problem, and if we burn 600 million tons, it will be huge. Of course, we are not burning all the residues, but despite utilizing all the residues, almost 25% of the crop residues are burnt in the field itself, and that's a big concern, because globally everybody is talking of carbon sequestration. We have to fix carbon in the soil as a sink, and our agriculture we are burning almost 150 million tons of crop residues, and that means almost 60,000 million tons of carbon in the atmosphere. So 600,000 million tons of carbon in the atmosphere. So that's a big issue, and this crop residue can be recycled. You know that it can be recycled. It can be converted into compost. Different kind of composts are there, be it microbe mediated compost, be it vermicompost, or any other form of compost. उसमें रिक्वेस्ट आ रहा बच्चों का कि इंग्लिश हिंदी में बोल सकते हैं क्या? अच्छा, हिंदी में बोलना है, ठीक है ओके, जितना बोल सकते हो उतना। नहीं श्योर आई कैन मैनेज दैट। मुझे लगा कि आपके पास भी आया, मैं दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा ठीक है ओके फ्रेंड्स, मुझे शायद दिख नहीं रहा था कि आप लोग जो है हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। नहीं ठीक है, आई विल मैनेज। तो हमारे कंट्री में जो है करीब, जैसा मैंने बताया कि करीब 150 मिलियन टन क्रॉप रेसिड्यूज होता है, और इसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ जो वेस्ट है, जो सिटी वेस्ट होता है, हमारा जो सब्जी मंडी होती है उनमें वेस्ट निकलता है, ये उसके अलावा वेस्ट। तो ये सारे वेस्ट को जो है हमारे को डिस्पोज ऑफ करना होता है, और यदि हम इसको सेफली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं तो हमारे लिए एक समस्या बनती जाती है।
और जैसा मैंने बताया, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने इंग्लिश में काफ़ी कुछ बोल गया, और कुछ लोगों को क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ कि हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो लगभग 300 मिलियन टन के आसपास है। इस साल फोरकास्ट है कि 303 मिलियन टन होगा, और जितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है उसका लगभग दोगुना जो है रेसिड्यू जनरेट होता है। तो यदि 300 मिलियन टन के आसपास फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है तो लगभग 600 मिलियन टन के आसपास क्रॉप रेसिड्यू जनरेट होगा। और हम बहुत सारा क्रॉप रेसिड्यू हम उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी लगभग 25% के आसपास जो है टोटल प्रोडक्शन का वो हमारा बर्निंग में जाता है, जिसको कि फील्ड में ही बर्न कर दिया जाता है। और यदि एक टन रेसिड्यू हम बर्न करते हैं तो लगभग 400 किलोग्राम कार्बन हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। और ग्लोबली आपको मालूम है कि ग्लोबली जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है, और यदि हम इतना रेसिड्यू बर्न करेंगे तो हम बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन जो है करीब 60 मिलियन टन के आसपास कार्बन जो है हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे सिर्फ एग्रीकल्चर अलोन से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो मतलब जो फार्म रेसिड्यू होते हैं या वेस्ट है उसको हम जब बर्न करते हैं तो उससे एसोसिएटेड दूसरी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं, जिनको कि हमें टेक केयर करना होता है। तो मतलब लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी है, जहाँ पे आप बर्न करेंगे उसकी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, और इसके अलावा जो है जितना न्यूट्रिएंट था उसमें वो भी लॉस हो जाता है, जो कि हम दूसरे तरीके से उसको रिसाइकल कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। या कंपोस्ट भी कई प्रकार के होते हैं, माइक्रो म्यूटेटेड होते हैं, जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्यूलाइटिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको उपयोग करके माइक्रो म्यूटेटेड कंपोस्ट बनाए जाते हैं। और यदि वो नहीं कर रहे हैं तो वर्मी कल्चर करके, वर्मी कंपोस्टिंग करके आप जो है उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इसके अलावा भी जो है जितना सिटी में वेस्ट होता है जो ऑर्गेनिक नेचर का हो, ऐसा नहीं कि आप सारे वेस्ट को आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ जो ऑर्गेनिक नेचर का वेस्ट है उसको डेफिनेटली हम जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ वर्म्स, और कई जगह ये भी कर सकते हैं कि दोनों माइक्रोब्स भी आप उपयोग कर सकते हैं और वर्म्स भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों का उपयोग करते हुए आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो अभी जैसे हमारा पहले यदि बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो हमारे पास में फूड ग्रेन की बहुत कमी थी। हमारी पॉपुलेशन करीब 35 करोड़ थी और फूड ग्रेन प्रोडक्शन लगभग 50 मिलियन टन के आसपास था। और ये था कि हमारे पास में फूड ग्रेन का हर साल कमी रहती थी। और उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से जो 63-64 के आसपास चालू हुआ था, और उसके जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी लाई गई, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हुआ, और साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हुआ। उसके चलते जो है हम सेल्फ सफिशिएंट हुए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, और आज की डेट में हम 303 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारी जो जमीन थी, जमीन की क्वालिटी में काफ़ी गिरावट आई है। ये सॉइल हेल्थ की बात करें तो सॉइल हेल्थ में काफ़ी गिरावट आई, और उसका मेन कारण ये रहा, देखा गया कि फर्टिलाइजर का जब उपयोग चालू हुआ तो किसानों ने जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं उनको खेत में अप्लाई करना कम कर दिया, जिसके कारण जो है धीरे धीरे करके हमारी जो सॉइल्स हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होने लगी। और बहुत सारे प्रकार के जो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, 17 पोषक तत्व फसल को चाहिए होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वो 17 पोषक तत्वों में से बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी पाई जा रही है। तो ये भी एक समस्या होती जा रही है। और दूसरी समस्या मैंने बता दिया कि जैसे जैसे मैकेनाइजेशन होता जा रहा है, हार्वेस्टिंग के लिए मशीन आती जा रही हैं, तो उसके जो है खेत में जो है सीधे दाना निकलता है, और जितना भूसा होता है वो खेत में रह जाता है।
और किसान जो है सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसको माचिस से जो है एक छोटी सी तीली से आग लगाया और पूरा खेत साफ हो जाता है एक रात में। तो वो बहुत आसान तरीका दिखता है देखने में जरूर, लेकिन उसकी जो इकोलॉजिकल कॉस्ट है वो बहुत बड़ी होती है। और इसके अलावा जो है हम बहुत सारे जो दूसरे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है और सॉइल हेल्थ के इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ों को हम बढ़ावा देते हैं। तो वो चीज़ हमें डिस्करेज यदि करना है तो कैसे, तो हमारे पास में कोई ना कोई टेक्निक ऐसी होना चाहिए जिससे कि हम उस वेस्ट को जो है कन्वर्ट कर सकें। और वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम इस वेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये समस्याओं को देखते हुए जो है विगत कुछ वर्षों में जो है, और दूसरा चीज एक और हुआ कि जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, तो जब आपके पास में पर्याप्त भोजन होता है तो फिर आप उसमें क्वालिटी देखते हैं। पहले हमारी आवश्यकता थी क्वांटिटी की आवश्यकता पूरी हो गई, अब हम क्वालिटी की बात करते हैं। तो जब क्वालिटी की बात आती है तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फूड जो है वो ज़्यादा बेहतर है और वो सारी चीज़ें हैं। तो जब ये चालू हुआ तो फिर उसमें जो है लोगों का जो है इंटरेस्ट जागा कि माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ कंपोस्टिंग जो है, वर्मी कंपोस्टिंग है, फार्म का वेस्ट है, अर्बन वेस्ट है, शहरी वेस्ट जो है उसका, जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका वेस्ट, उन सभी चीज़ों को जो है किसी ना किसी प्रकार से फर्दर रिसाइकल करके हम उसको दोबारा यूटिलाइज कर सकें। तो ये इस पे जो है काफ़ी इंटरेस्ट लोगों का जागा। और जो वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये सभी प्रकार के जितने वेस्ट हैं उसको हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल इनपुट में। और जो कि जो है ना सिर्फ सेफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट करेगा, बल्कि जो हमारी सॉइल हेल्थ इश्यूज जो आ रहे हैं उसको भी एड्रेस करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोनों तरीके से हम इसमें एक विन विन सिचुएशन है कि आप ना सिर्फ कचरे से निजात पा जा रहे हैं, बल्कि उस कचरे से आप पैसे भी कमा सकते हैं, और उसको जब उपयोग करेंगे तो उससे जो है एक सेफ फूड आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, और जो आपका एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, सॉइल हेल्थ इश्यूज हैं, उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये टोटली विन विन सिचुएशन है जिसमें कि आपको खोने का कोई गुंजाइश नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन डेफिनेटली जो है ये मेथड जो है थोड़ा सा मेहनत मांगती है। इसको टेक्निकली जब आप करेंगे तभी इसको आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज जिसको सही ढंग से मैनेज नहीं करेगा वो परेशान रहेगा हमेशा इसमें, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। पता लगा कि जो आगे मैं चल के आपको बताऊंगा, और तो जिसमें कि होता ये है कि आप वर्म रिलीज किए और वर्म आपके मर गए, तो आप परेशान कि अरे भाई मैं इतने महंगे वर्म लेके आया था और वो वर्म मेरे मर गए। तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो मेथड है उसमें फॉल्ट होता है, उसकी वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो वर्म्स जो होते हैं वो जितना डेड मटेरियल होता है जो सॉइल में हो या किसी और अदर फॉर्म में है, उस मटेरियल पे फीड करते हैं, और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट कंटेंट है, उसको जो है टॉप सॉइल पे रिलीज कर देते हैं। आपने कभी यदि देखा हो, बारिश के दिनों में देखा हो, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्म कास्ट जो है दिखने लगते हैं। तो वो वर्म के गट से ही निकल पास ऑन होके जो है सॉइल जो है वो आती है। तो वो जो है लेकिन वो बारिश के दिन में ही दिखता है, बाकी समय में जब सॉइल ड्राई जाती है तो नहीं दिखता है, क्योंकि वर्म फिर अंदर चले जाता है। और हर वर्म भी बहुत प्रकार के होते हैं, जो वर्म की भी जो है करीब 9000 प्रजातियां होती हैं, लेकिन हर एक प्रजाति हमारे काम की नहीं है। उसमें से गिनती की जो है 7-8 ही जो है हम लोग कंपोस्टिंग के लिए यूज कर पाते हैं। उसमें से भी 3 ही जो है ज्यादा यूज होती हैं, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक ही प्रजाति है, तो उसका जिसको जो है यूज किया मैक्सिमम यूज होता है जिसका, तो वो आगे हम देखेंगे अभी। और ये जैसा मैंने बताया कि ये सबसे एक आसान तरीका है
जिससे कि हम किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और रिसाइकल करके उस वेस्ट से हम एक बहुत ही यू कैन से मूल्यवान, है ना, मूल्यवान कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और इसमें होता यह है कि अर्थवर्म जो है वो जितना बायोमास आप उसको फीड करने के लिए देते हैं उस बायोमास पे फीड करता है और उसको एक्सक्रीट जो करता है डाइजेस्टेड फॉर्म में, जिसको कि हम वर्म कास्ट कहते हैं, वो वर्म कास्ट ही जो है कंपोस्ट के फॉर्म में होती है। और जो वर्म कास्ट निकलती है उसके गट से पास होके, तो वो जो है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है। बहुत सारे उसमें ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस जो ऑर्डिनरी कंपोस्ट में नहीं होते हैं, वर्म के गट से पास होने के बाद उसमें ऐड हो जाते हैं। बहुत सारा बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोफ्लोरा जो है, ये कहा जाता है लगभग 7 गुना ज़्यादा जो है माइक्रोफ्लोरा उसमें वर्म कास्ट में होता है एज कम्पेयर टू सिंपल कंपोस्ट। और इसके अलावा जो है जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स के लिए दूसरे तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हैं, उनको जो है इनहिबिट करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उस वर्म कास्ट में होती हैं और इस वर्म कास्ट को इसीलिए कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड भी, वर्मी कंपोस्ट को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये जो मटेरियल आपको वर्म कास्ट मिलता है, ये जो है एक स्टेबल होता है, फाइन ग्रेनुलर, एक चाय जब इसको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि चाय की पत्ती का फील देगा ये आपको, जो एकदम बढ़िया तैयार कंपोस्ट होगा। ऐसा लगेगा जब आप उसको उठा के देखेंगे तो थोड़ा लाइट लगेगा वेट में और एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे चाय की पत्ती आपने हाथ में ली हो, इस प्रकार का मटेरियल दिखता है। और जब आप इसको सॉइल में अप्लाई करते हैं तो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। उसकी जो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, उनको इम्प्रूव करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें कि न्यूट्रिएंट कंटेंट और सारी चीज़ें होती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करता है। और जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी जो है ये इम्प्रूव करता है। तो जितनी सॉइल की फिजिकल, केमिकल, तो एक सॉइल हेल्थ जो होती है वो 3 प्रॉपर्टीज से मिलकर बनती है, सॉइल की फिजिकल हेल्थ, केमिकल हेल्थ और बायोलॉजिकल हेल्थ। ये तीनों जब अच्छी होंगी तभी हमारी सॉइल एक हेल्दी सॉइल कहलाएगी। और वर्मी कंपोस्ट ऐड करने से ये तीनों ही प्रॉपर्टीज पे बेनिफिशियल इफेक्ट देखा गया है। और जब आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो उसको जो यूज है वो सीडलिंग्स को रेज करने के लिए या हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा देख पाया गया है। जहाँ पे आप हाई वैल्यू क्रॉप लगा रहे हैं वहाँ पे आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कीजिए, या सीडलिंग्स तैयार कर रहे हैं वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपके पास में एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल है तो आप फील्ड क्रॉप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन के लिए हमारा जो है काफ़ी आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा जो हमारी टेंडेंसी है ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ ज़्यादा है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए भी जो है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और काफ़ी आसानी से तैयार हो जाता है कंपोस्ट। तो डेफिनेटली जो है किसी चीज़ की जब पॉपुलैरिटी होती है या उसकी डिमांड होती है मार्केट में, तो फिर उसका जो है इकोनॉमिक जो वैल्यू होती है वो भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो ऐसा ही कुछ जो है वर्मी कंपोस्ट के साथ भी हो रहा है। इसीलिए इसको जो है एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का भी जो है कितने के लिहाज से भी देखा जा सकता है कि इसको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है जैसे स्वच्छ भारत अभियान भी हमारा एक कंट्री का काफ़ी बड़ा एक कैंपेन चल रहा है। तो जहाँ भी ऑर्गेनिक वेस्ट इस प्रकार से दिख रहा है उन जगहों पर जो है जो कि डंपिंग होके जो है कचरा बना रहा है, गंदगी पैदा कर रहा है, उस पर भी जो है हम लोग उन जगहों पे भी वर्मी कंपोस्ट के पिट लगाकर उन जगह को भी स्वच्छ कर सकते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफ़ी बड़ा कैंपेन चला रही है और उस कैंपेन को भी फुलफिल के जो उद्देश्य है उसको फुलफिल करने के लिए भी वर्मी कंपोस्टिंग जो है एक टूल के रूप में हमारी हेल्प कर सकती है, जिसमें कि हम जो है जितना हमारे पास में ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ वहाँ
पड़ा हुआ कचरे के तौर पे है, जो गंदगी के तौर पे दिख रहा है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो गट जो होता है, जो अर्थवर्म का सिस्टम होता है, वो एक बायोरिएक्टर जैसा है, और जिसमें कि आइडियल कंडीशंस टेम्परेचर की, पीएच की, ऑक्सीजन की होती हैं, जो कि एक जो माइक्रो एरोबिक बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज जो होते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशंस उसमें होती हैं। इसी के कारण जो है, जो मैंने बताया था कि जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स की संख्या होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक जो अर्थवर्म जो है वो एक ऐसे बायोरिएक्टर भी काम करता है। और जो कंपोस्ट होती है वो उसमें, जैसा मैंने बताया कि जो एक्सक्रीटा होता है वर्म्स का, जिसको हम वर्म कास्ट कहते हैं, तो जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें वर्म कास्ट होता है मेनली, और इसके अलावा कुछ स्तर पर जो है जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी हो सकता है, जो कि पूरे तरीके से कंपोस्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मात्रा में रह गया है। तो वो भी जब उसकी हम सीविंग और सारी प्रोसेसिंग करते हैं तो कुछ मात्रा में वो भी आ जाता है। और यदि आइडियल कंडीशंस की बात करें, यदि आइडियल कंडीशंस हैं, तो जो एक वर्म होता है वो एक दिन में जितना उसका वजन है उतना लगभग उतना ही जो है मटेरियल को फीड कर सकता है ना। तो ये भी है कि, और नहीं तो नॉर्मल, यदि बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं तो भी जो है कम से कम 30% ऑफ इट्स ओन वेट जो है वो उतना ऑर्गेनिक मैटर एक दिन में जो है खा सकता है। तो काफी तेजी से ये फीड करते हैं, जो पर्टिकुलरली रेड अर्थवर्म है, ये इसका फीडिंग रेट काफी हाई होता है, मल्टीप्लिकेशन रेट काफी हाई होता है। तो इसके अलावा जो है, जैसे मैंने बताया था कि वर्म कास्ट में जो है लगभग 8 गुना जो है अधिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि एज कम्पेयर टू जो फीड उसने खाया था उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें वर्म कास्ट में होते हैं। और ये वर्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं जितने इसमें होते हैं वो जो वर्म के गट में से पास होने पे वो मर जाते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज इसका है कि जो पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी संख्या भी जो है वर्मी कंपोस्ट में नहीं होती है। तो अब बात आती है कि कौन कौन सा मटेरियल हम जो है कंपोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि देयर इज नो लिमिटेशन। जब तक आपके पास में कोई भी ऑर्गेनिक सोर्स का मटेरियल है, और कहाँ से आया क्या है उसका कोई वो नहीं है, आप किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे कि एनिमल का वेस्ट है, फूड वेस्ट है, फार्म वेस्ट है, गार्डन का वेस्ट है, जंगल का वेस्ट है, कोई किसी भी प्रकार का जो है ऑर्गेनिक वेस्ट हो, उसको आप जो है, और जिसको कि वर्म खा सके, उसको जो है आप यूज कर सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। वैसे जो कॉमन होता है, कॉमनली जो हम लोग एग्रीकल्चर में जो वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं उसमें जो है एनिमल डंग, मतलब काउ डंग मोस्टली होता है, और इसके अलावा लेकिन यदि किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी और एनिमल का डंग भी यदि यूज होता है तो वो किया जा सकता है उपयोग। इसके अलावा जो है जो भी मटेरियल आपके पास वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो फार्म की क्रॉप का वेस्ट हो या आपका वेजिटेबल का वेस्ट हो, सिटी से आ रहा है, मंडी से आ रहा है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का वेस्ट आ रहा है, तो उस वेस्ट को जो है चॉपिंग करके यदि हम कंपोस्टिंग के लिए यूज करते हैं तो वो अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। जितना बड़ा मटेरियल होगा उस डेफिनेटली उस कंपोस्टिंग के लिए समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए ये प्रेफर किया जाता है कि हम जो है जो मटेरियल यूज कर रहे हो अदर देन काउ डंग, वो मटेरियल को चॉपिंग कर लिया जाए ताकि उसका साइज छोटा हो जाए। और इसके बाद जो है जो इसका रेशो की बात यदि हम करते हैं कि काउ डंग और जो क्रॉप रेसिड्यूज हैं या दूसरा वेस्ट मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं
वो उसका रेशो क्या कितना होना चाहिए। तो रेशो जो है 1:1 मतलब 1:2 ले सकते हैं या 1:1 ले सकते हैं, मतलब 50-50% तक जो है हम जा सकते हैं, और नहीं तो 30% या 33% के आसपास तक भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जितना आपके पास मटेरियल हो उसके हिसाब से आप जो कंटेंट है उसको आप थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे यदि आपने ज़्यादा जो है रेसिड्यू रख लिया है और काउडंग को बहुत जो रेशियो है वो काफ़ी कम कर दिया है, तो डेफिनेटली हमारा जो कंपोस्टिंग का पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यदि 1:1 का रेशियो है या 1:2 का रेशियो है, वहाँ तक में जो है आपका जो कंपोस्टिंग का टाइम है वो 65-70 दिन में जो है कंपोस्टिंग हो जाती है। लेकिन ये 65-70 दिन भी कब होता है, ये इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ से काउंटिंग चालू होती है ना, क्योंकि एकदम आप रॉ मटेरियल से चालू नहीं करते हैं। आपको करीब 3 वीक्स का टाइम जो है कंपोस्टिंग की बेड में जाने के पहले 3 वीक्स का जो है प्री इंक्यूबेशन पीरियड जैसा एक होता है, जिसमें कि आप मटेरियल को रेडी करते हैं, उसको थोड़ा सा पार्शियल डिकम्पोजिशन के लिए रखते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इस प्रकार से जो रेशियो होता है 1:1 या 1:2 का रेशियो तक आप यूज़ कर सकते हैं। और जो लेग्यूम और नॉन लेग्यूम क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं, तो यदि आपने लेग्यूम का जो सबस्ट्रेट यदि यूज़ किया है, जो क्रॉप रेसिड्यूज लेग्यूम के हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो कंपोस्ट तैयार होगी उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो नॉन लेग्यूम क्रॉप रेसिड्यूज को यदि आप यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें जो क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट तैयार होगी उसमें वेरिएशन होगा। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित लोग हैं आप भी, आप ये जानते होंगे कि लेग्यूम क्रॉप्स का यदि हम रेसिड्यू लेंगे तो वो करीब करीब 2-2.5 टन 3 टन पर हेक्टर तक आता है। जबकि यदि हम नॉन लेग्यूम लेंगे, यदि राइस वीट की बात करेंगे, तो उसमें 7-8 टन तक जो है वो वहाँ पर आपको रेसिड्यू मिलता है। तो डेफिनेटली कहीं पे क्वालिटी आएगा तो कहीं पे क्वांटिटी आएगा, ये चीज़ रहेगी। और इसके अलावा जो है जो अर्थवर्म हम यूज़ करते हैं, एसिना फेटिडा जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वर्म स्पीशीज है, वो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है बहुत हाई होता है, और ये जो है जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको फीड, क्योंकि फीडिंग रेट भी इसका काफ़ी हाई है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको 65 से 70 दिन में कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिना फेटिडा का ये एडवांटेज है, जो कि बाकी वर्म स्पीसीज से इसको जो है ज़्यादा पॉपुलर करता है। अब जब आप कंपोस्टिंग करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे कि आपके पास में ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो क्या क्या मटेरियल होना चाहिए? तो जो प्री रिक्विजिट मटेरियल्स हैं वो, जिसमें कि पानी की फैसिलिटी आपकी यूनिट के पास में होना चाहिए, देन काउडंग होना चाहिए, और खुले में आप क्योंकि नहीं कर सकते हैं तो एक आपके पास में शेड होना चाहिए, चाहे वो लो कॉस्ट हो, चाहे आप बड़ी यूनिट बना रहे हैं तो एक फैसिलिटी के रूप में हो, जैसा भी हो, तो आपको एक रूफ वाला जो कवर्ड शेड होना जरूरी है। मिट्टी या सैंड की आवश्यकता है, आपको गनी बैग्स चाहिए, आपको अर्थवर्म्स, ऑफ कोर्स अर्थवर्म के बिना जो है कंपोस्टिंग नहीं, वर्मी कंपोस्टिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो है इसके साथ में मिक्स करने के लिए आपके पास में वीट बायोमास, क्रॉप बायोमास, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। जहाँ पे मटेरियल्स को रखना है, उसको मिक्स करना है, उसके लिए भी आपके पास में एक बिन होना चाहिए, कोई ऐसी या खुली जगह पे भी इसको मिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ड्राई स्ट्रॉ, लीव्स, ये जितना भी जो भी वेस्ट आपके पास में अवेलेबल हो वो सारा चीज़ होना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप बैकयार्ड कर रहे हैं तो उसमें जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि घर के किचन से या कहीं और से भी मिल रहा है, तो वो आप, या होम गार्डन है उससे वेस्ट मिल रहा है,
तो वो सारी चीज़ों को आप जो है एज ए मटेरियल यूटिलाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली जो है जब हम कॉमर्शियल लेवल पे करेंगे तो हमारे पास में लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए ये सारे मटेरियल, लेकिन यदि छोटे स्तर पे बैकयार्ड कर रहे हैं या फिर आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी जो है आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब बैकयार्ड करेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ उसमें आप कॉमर्शियल कोई एंगल नहीं होता बैकयार्ड वाले में, आप सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और अपने जो गार्डन में है उतना यूज़ करने के लिए ही आप प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यदि आप कॉमर्शियल एंगल पे जाएंगे तो आपको मीडियम या लार्ज कैपेसिटी की जो है आपको यूनिट पे काम करना पड़ेगा, तभी उसको आप एक एज ए एंटरप्रेन्योर आप उसको एज ए बिजनेस आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि बहुत सारे वर्म स्पीशीज होते हैं, लगभग 9000 वर्म की स्पीशीज होती हैं, लेकिन हर एक स्पीशीज जो है सुटेबल नहीं है। तो 3 स्पीशीज जो है कॉमनली यूज होती हैं, लेकिन इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो पहली स्पीशीज है इसिना फोएटिडा, उसका जिसको रेड विगलर वर्म भी कहा जाता है, वही जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा जो है यूट्रिलस भी यूज़ करते हैं, कुछ पेरिनिक्स स्पीशीज को भी जो है थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसिना फोएटिडा का ही, और हमारे कंट्री में इसिना फोएटिडा ही सबसे ज़्यादा सुटेबल पाई गई है। तो ये जितनी स्पीशीज है ये सभी मिलती हैं। इसके अलावा भी जो कई बार लोग पूछते हैं कि ये जो है बड़े वाले वर्म जो है जो होते हैं इनको भी हम उपयोग कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उनका फीडिंग रेट, उनका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत स्लो होता है, इसलिए कंपोस्ट बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं वो, है ना। किसी भी जो एपिजेनिक वर्म होता है, एपिजेनिक वर्म की जो क्वालिटी होती है वो उसका फीडिंग रेट, मल्टीप्लिकेशन रेट, वो सारी चीज़ें होती हैं। और यदि उसको हमको किसी पर्पज में यूज़ करना है, कंपोस्टिंग में यूज़ करना है, तो इट शुड बी वेरी फास्ट। तो यदि वो नहीं है, फास्ट स्पीशीज नहीं है, तो वो डेफिनेटली हमारे काम का नहीं है। इसीलिए जो है इसिना फोएटिडा जो है सबसे हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा अच्छी पाई गई है, जो जिसका मोस्टली जो है जिसका यूज़ हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको आप जो है जैसा आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं, जैसे स्मॉल स्केल या होम सिस्टम, है ना। तो उसमें आप जो हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है, किचन वेस्ट होता है, गार्डन वेस्ट होता है, उन सारी चीज़ों को जो है आप यूज़ कर लेते हैं, और जिसमें कि फ्रूट या वेजिटेबल के वेस्ट हो सकते हैं। इवन जो सिट्रस स्पीशीज होती है, सिट्रस स्पीशीज जो है क्योंकि उसका पीएच कम होता है तो वो उतना सुटेबल नहीं होता, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी तक सिट्रस स्पीशीज का वेस्ट भी हम मिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलाएंगे तो काम नहीं बनेगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को। जो फलों और सब्जियों का छिलका होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी के जो बैग्स होते हैं या वेस्ट है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितना हमारा जो बेकार भोजन, कई बार ये होता है कि फूड वेस्ट हो जाता है, तो वो फूड वेस्ट भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। एग शेल्स होते हैं जिनको कि धोने के बाद जो है यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज धो के यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन धोने के बाद यदि यूज़ करेंगे तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने जो है लीव्स हैं, पत्तियां हैं पेड़ पौधों की, वीड्स हैं, ग्रासेस हैं, सबको जिनमें कि पेस्टिसाइड आपने नहीं डाला हो, ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि पता लगा कि आपने पेस्टिसाइड मिला हुआ चीज़ डाल दिया तो वर्म को भी नुकसान करेगा वो। इसके अलावा जो है पेपर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो नैपकिन्स वगैरह निकलते हैं उनको भी जो है यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते उन सब चीज़ों को केमिकल फ्री चीज़ें हों। और दूसरा हो सकता है कि जो लार्ज स्केल पे कंपोस्टिंग की जाती है, तो लार्ज स्केल पे या कॉमर्शियल स्केल पे जब आप करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास में एक पक्का सोर्स होना चाहिए जहां से कि आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलते रहे रॉ मटेरियल की। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि एक आपने लार्ज स्केल पे काम चालू कर लिया और आपको यदि सप्लाई बराबर नहीं मिल रही है रॉ मटेरियल की,
तो आपकी जो यूनिट है वो अंडर उस पर चलेगी हमेशा, है ना। तो जब अंडर कैपेसिटी पे चलेगी तो आपको प्रॉफिट नहीं देगी। तो इसलिए लार्ज स्केल पे जब करना चाहते हैं तो उसके साथ में ये भी देखते हैं कि हमारे पास खुद की भी एक यूनिट होना चाहिए, और हमारे पास में उसके अलावा जहाँ से सप्लाई, फर्दर सप्लाई आना है, वहाँ से भी हमारा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट या सोर्स के साथ, रिलायबल सोर्स के साथ में हमारी टाई अप होना चाहिए कि हमें कंटिन्यूस जो है सप्लाई मिलती रहे। जैसे काउ डेयरी काउ और पिग मैन्योर है, उसका सप्लाई होना चाहिए। सीवेज स्लज का भी यूज किया जा सकता है। ब्रूअरी का वेस्ट जो होता है उसको, कॉटन मिल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, फूड प्रोसेसिंग और ग्रोसरी का वेस्ट है, कैफेटेरिया का वेस्ट है, ग्रास और ट्री का वेस्ट है, वो ये जो वेस्ट है। लेकिन इन सबका लार्ज स्केल पे जो हम करने जा रहे हैं तो अनइंटरप्टेड जो है सप्लाई एश्योर्ड होना चाहिए। तो ये सब तो बातें हुई, कौन सा वर्म है, कौन सा मटेरियल है, किस लेवल पे कौन सी कंपोस्टिंग की मेथड लगाना है। अब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे है, तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। आप सीधे, ऐसा नहीं होता कि आप सीधे गए, आपने वर्म लेके आए, रॉ मटेरियल लाए, उसमें वर्म छोड़ दिया, सिर्फ इतना सा काम नहीं है। तो पूरा आपको एक स्टेप वाइज प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो यदि आप उसको सोचेंगे कि बस ये तो कंपोस्टिंग की मेथड है और इसको हम मटेरियल लाओ और फेंक दो और हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। इसको पूरा आपको प्रिपरेशन करना होगी, और राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कहाँ पे आपने यूनिट इंस्टॉल करी है, कैसे मटेरियल तैयार किया है, फिर मटेरियल तैयार करने के बाद उसको कहाँ, कब, किस साइज में उसको सेट आपने बेड्स बनाए हैं, वर्म कब छोड़े हैं, कितना पानी देना है, कैसे मैनेज करना है, कब उसको मैच्योरिटी हो रही कि नहीं हो रही, कैसे हो रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है। वो सारी चीजें देखने के बाद में हम उसको फिर कब हार्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें, हार्वेस्टिंग का ऐसे करना है कि वर्म आपके बचे रहें, वो सारी चीजों को आपको देखना है। और ये सारी एक जो है स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले जो साइट आपकी होना चाहिए वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, वो एक ठंडी, थोड़ा नमी वाली जगह होना चाहिए, और ऐसी जगह हो कि जहाँ पे शेड भी हो, थोड़ा नेचुरल शेड हो। और उसके बाद में आपको उसको जो है रेन वाटर से और बाकी चीज़ों से बचाने के लिए, डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए आप कुछ अलग से जो है थैच, यदि छोटे स्केल पे है तो थैच लगा लेंगे, क्या शेड लगा लेंगे, या फिर लार्ज स्केल पे है तो आप टेम्पररी टीन का शेड बना सकते हैं, या और बड़े स्केल पे है तो आप पक्का स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के किस लेवल पे काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको जो है साइट होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ठंडी जगह हो, थोड़ा मॉइस्ट हो और शेडी प्लेस हो, ये तीन चीजें जो है मस्ट होती हैं कभी जहां भी आप वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट बनाने जा रहे हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जगह ऐसी हो जहाँ पे आपका पानी की अवेलेबिलिटी हो, और बाकी अदर रिसोर्सेज जो है उनकी अवेलेबिलिटी उसके नजदीक में होना चाहिए। अब जो रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल देखिए, रॉ मटेरियल को हमको पहले तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सीधे आपने मटेरियल लाया और पटक दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको एग्रीकल्चर वेस्ट या दूसरा वेस्ट कोई भी मिला है तो उस वेस्ट को पहले आपको चॉपिंग करना होती है। चॉपिंग मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि चॉपिंग करके उसका पार्टिकल का साइज जो है छोटा कर लिया जाता है, या मटेरियल का साइज छोटा कर दिया जाता है, ताकि उसको आपको हैंडल करने में आसानी हो। डिकम्पोजिशन भी उसका थोड़ा फास्ट हो जाएगा छोटा साइज होने से, और वर्म्स को भी फीड करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो हमारा जो फार्म वेस्ट है या दूसरा वेस्ट जहाँ से भी वेस्ट आया है, उसको हम जो है साइज को छोटा करते हैं।
फिर दूसरा जो चीज है कि जो काउडंग है हमारे पास में, तो काउडंग भी एकदम फ्रेश नहीं होना चाहिए, कम से कम 10-15-20 दिन पुराना काउडंग होना चाहिए। कारण बताऊंगा अभी आपको मैं उसका कि क्यों होना चाहिए। और फिर उसके ये दोनों मटेरियल जो है आपको रेडी हो गए। अब इसको जो है आप इस मटेरियल को आपको लेयर्स में सेट करना चाहिए। अदरवाइज आप यदि लेयर में नहीं करना चाह रहे हैं तो दोनों मटेरियल को एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन लेयर्स में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाया जाता है, ये देखा गया है। तो पहले सबसे पहले जो नीचे लेयर बनाएंगे, तो नीचे लेयर करीब जो है 15 से 20 दिन पुराने काउडंग की 15 से 20 सेंटीमीटर, मतलब करीब 6 से 8 सेंटीमीटर इंच की जो है, लगभग इतनी, यदि आप हाथ से देखेंगे लगभग इतनी मोटी आप लेयर एक को सबसे पहले बिछा देते हैं, जो सबसे नीचे होती है। और ताजा गोबर क्यों नहीं होना चाहिए, ये सवाल लोग पूछेंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं बता देता हूँ पहले ही कि ताजा गोबर यदि कभी आप में से यदि कोई व्यक्ति ने देखा हो गांव में, तो जो गांव में जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है वो गोबर का ढेर लगा देते हैं, और कभी जाके देखिएगा कि उस ढेर के अंदर जो है, उस ढेर में अंदर हाथ डाल के देखिएगा, तो आप ये देखेंगे कि वो ढेर में टेम्परेचर बहुत हाई है, और कई बार तो इतना हाई होता है कि पता लगा आपका हाथ जल, मतलब इतना गर्म लगेगा कि आप हाथ तो बाहर निकाल लेंगे। तो ये गर्म इसलिए होता है कि वहाँ पे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही होती है, माइक्रोब्स बहुत सारे होते हैं, और उसके कारण जो है टेम्परेचर राइज होता रहता है। और यदि ऐसे मटेरियल में आप वर्म्स रिलीज कर देंगे तो डेफिनेटली वर्म उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये बताया गया कि 15 से 20 दिन पुराना गोबर कम से कम होना चाहिए, जो कि पार्शियली डिकम्पोज्ड हो। तो पहला सबसे पहली लेयर आपने जो पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल है उसकी 6 से 8 इंच की मोटी परत आपने लगा दी, और इस परत का साइज जो है वेरिंग साइज रखे जा सकते हैं। नॉर्मली जो है 10 से 12 फीट लंबा तक रखा जाता है, 2 फीट के आसपास, 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक चौड़ा भी रखा जा सकता है, और लगभग इतनी ही ऊंचाई 1.5 से 2 फीट तक ऊंचाई रखी जाती है। और इसके अलावा भी आप इसको जो है साइज को वेरी कर सकते हैं, जो कि अपना जो आपको हैंडल करने के लिए आसान हो। इससे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा ये साइज जो है हैंडल करने की अच्छा आसान पाया गया है। अब ये जो है इस प्रकार की लेयर जो है, पहले आपने 15 से 20 सेंटीमीटर गोबर की लेयर रख दी, उसके ऊपर फिर आप जो है रॉ मटेरियल जो चॉप्ड ड्राइड लीव्स हैं, घास फूस है, वो उसकी जो है उसकी 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची जो है लेयर आपने लगा दी। और इस प्रकार से जो लेयर को बनाते हुए कम से 5-6 अल्टरनेट लेयर्स का को इकट्ठा करके आप बेड तैयार करते हैं। तो जब ये 5-6 अल्टरनेट बेड हो जाती हैं, तो ये आपका करीब 2-2.5 फीट का ऊंचा जो है बेड तैयार हो जाता है। तो ये इस बेड को तैयार करने के बाद में इसको थोड़ा सा हमको प्रोसेस के लिए छोड़ना पड़ता है, और एक यदि जो साइज मैंने बताया लगभग उतना साइज होगा तो 1.5 से 2 कुंटल के आसपास ऑर्गेनिक वेस्ट उस पे उस एक बेड में आएगा। और जो रेशो मैंने बताया था कि 10:3 या 1:2 या 1:1 का रेशो आप यूज कर सकते हैं, तो वो रेशो में ही आप दोनों मटेरियल को यूज कीजिए। और इसमें जो है इस जो आपने बेड बनाया है, क्योंकि ये अभी भी रॉ मटेरियल है, तो इसको आपको कुछ दिन वाटरिंग करना होगा, और उसका टेम्परेचर देखना होगा कि टेम्परेचर जब आपको लगे कि अंदर हाथ डालने से गर्म नहीं लग रहा है, तब आप इसमें वर्म छोड़ सकते हैं। और जो वर्म होंगे, जो बेड का साइज मैंने बताया लगभग उसमें 1000 नंबर के आसपास वर्म, या 1 kg वर्म के आसपास पर 1 kg पर क्विंटल के हिसाब से वर्म आप रिलीज कर सकते हैं। और जब वर्म छोड़ेंगे तो उसके बाद में उसको आपको रेगुलरली पानी छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है सुबह शाम, सो दैट उसमें मॉइस्चर लेवल जो है बराबर बना रहे। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना होगी। और अदरवाइज यदि आपने पानी वाटरिंग नहीं करेंगे तो वर्म का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। और यदि ज्यादा गर्मी हो रही है तो उसको जो है गनी बैग से आपका जो बेड है उसको कवर करके भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए स्टेप वाइज जो है
इसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। जो फर्स्ट जो फोटोग्राफ दिख रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल को तैयार किया जा रहा है ना, और जो बड़ा रॉ मटेरियल है उसको चॉपिंग करके जो है उसको छोटे में कन्वर्ट किया गया है। फिर जो है लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स में लगाना है। और यहाँ देख रहे हैं आप बेड बन गई है ना, उसमें वर्म रिलीज करना है, और फिर बेड को किस प्रकार से ढक के रखना है। और अल्टीमेटली जो है आपका जब मटेरियल तैयार हो जाए तो उसको सीविंग करके, सीविंग मतलब छन्नी से छान के उसको वर्म और कंपोस्ट को आप अलग कर सकते हैं। इसके अलावा भी लेकिन बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जिसमें कि आप यदि आप सीविंग नहीं है तो भी वर्म को आप अलग करने की मेथड भी है। उन मेथड को यूज करके आप वर्म को सेपरेट कर सकते हैं। और जो आखिरी फोटो देख रहे हैं इसमें कि फाइनली छन के जो है जो आप मटेरियल देख रहे हैं फाइन चाय की पत्ती जैसा मटेरियल दिख रहा है। तो जो फाइनल का प्रोडक्ट आपका तैयार होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। और आप इधर राइट साइड में देख रहे हैं कि अलग अलग साइज की जो है बेड्स मेथड दिख रहे हैं। ये लार्ज स्केल मेथड्स हैं जो कि कॉमर्शियल लेवल पे किए जाते हैं और बहुत बड़े स्केल पे ये होते हैं। तो उसके लिए जो है हाईली मैकेनाइज्ड कंपोस्टिंग यूनिट तक भी जो है बनाई जा सकती हैं। लेकिन सब कुछ डिपेंड करे, इनिशियल लेवल पे आप इतने हाई लेवल पे नहीं जा सकते। इनिशियली आपको लो कॉस्ट मेथड से चालू करना होगा, देन एडवांस करते हुए आप कहाँ तक आपका बिजनेस जा रहा है उस हिसाब से आप उसको अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ये जो आपका मटेरियल फाइनल मटेरियल तैयार होगा तो उसका कुछ न्यूट्रिएंट कंपोजिशन जो है वो लगभग कुछ इस प्रकार का होगा। ये दिस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन। ये ऐसा नहीं कि यदि मैंने ये बताया तो एग्जैक्टली ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका रॉ मटेरियल कैसा है, कंपोस्टिंग कंडीशंस कैसी थी, आपने उसमें कितना पानी डाला है, क्या किया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप बहुत ज़्यादा पानी यदि डाल दे रहे हैं और उसमें से पानी कंपोस्ट के बेड में से जो है बह के निकल गया है तो देखा गया है कि आपका जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है पर्टिकुलरली नाइट्रोजन वो कम हो गया। तो ये एक स्टैंडर्ड पैकेज जो आप एडॉप्ट करते हैं और उसके साथ में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब लगभग इस प्रकार का, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यदि आप लेग्यूम का सबस्ट्रेट यूज करेंगे तो आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होगा और एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करने वाली चीज़ है। लेकिन जो यदि ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो करीब 9 से लेके 18% तक जो है ऑर्गेनिक कार्बन होगा। टोटल नाइट्रोजन 1.5 से लेके 2% तक हो सकती है। फास्फोरस 1 से 1.5% हो सकता है। पोटेशियम 0.6% के आसपास हो सकती है। कैल्शियम मैग्नीशियम 22 से लेकर 70 ppm तक हो सकते हैं। सल्फर जो है 128 से 548 ppm हो सकता है। कॉपर होगा, आयरन होगा, जिंक होगा। इसके अलावा बाकी न्यूट्रिएंट भी इसमें होते हैं। यदि तुलना करें हम सिंपल कंपोस्ट से तो सिंपल कंपोस्ट से ये लगभग दोगुना या उससे ज़्यादा मात्रा होती है। जैसे सिंपल FIM की हम बात करें तो FIM में जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो लगभग 0.5% के आसपास होता है। फास्फोरस जो है वो 0.3-0.4 तक के आसपास तक होता है। पोटेशियम 0.2 के आसपास होता है। तो उसके मुकाबले लगभग 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट वर्मी कंपोस्ट में पाया जाता है। और इसीलिए जो है जब वर्मी कंपोस्ट हम डालते हैं तो हम ये कहते हैं कि FIM की तुलना में इसकी मात्रा कम डालना होती है। तो वो इसी कारण यही है उसमें कि न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट है वो ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू हमारा FIM। यदि हम बात करें कि ग्लोबली जो है वर्मी कंपोस्टिंग, वैसे तो मतलब सब ये कहेंगे कि भाई वर्मी कंपोस्ट जब इतना अच्छा वो है तो डेफिनेटली जो है इसको बिजनेस के तौर पे अडॉप्ट किया जा सकता है। तो यस, इट इज एग्जिस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट की जो इंडस्ट्री है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। ये अभी फुल उस पे नहीं, बूम पे नहीं आई है और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री में अभी। तो कमर्शियल लेवल पे जो है, और
इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जो है इस पर जो है काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। और इंडिया का जो हमारी कंट्री का जो यदि हम प्रोडक्शन को यदि वैल्यू करते हैं तो करीब 9.5% जो ग्लोबल वर्मी कंपोस्ट है उस प्रोडक्शन है उसका करीब 9.5% हमारा शेयर है। और यदि ग्लोबल लेवल पे बात करें तो एक कंपनी है माइनोक करके, वो जो है ग्लोबल लीडर है वर्मी कंपोस्ट मार्केट में, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर है, करीब 9% के आसपास शेयर है उसका। और यदि हम इसके मॉनेटरी टर्म्स में बात करें कि कितना जो है वॉल्यूम हो सकता है, तो 2014 और 2015 का कंपैरिजन यदि करें हम तो जो सेल थी वो करीब 25% के आसपास इंक्रीज उसमें हुआ था। और यदि मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो इसकी वैल्यूएशन करीब जो है 38 मिलियन US डॉलर के आसपास जो है थी। और ये यहाँ पे रुका नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वर्मी कंपोस्ट का मार्केट है वो यहाँ रुक नहीं रहा है। 2015 में 38 मिलियन US डॉलर के आसपास था और अभी भी ये जो बिजनेस है ये एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है और बहुत सारे कई उद्योगों से जो है फास्टर ग्रोथ रेट इसमें देखा जा रहा है। और इसका जो प्रोजेक्शंस हैं वो प्रोजेक्शंस की बात करें तो यदि हम 2026 तक इसका प्रोजेक्शन देखें तो इट विल क्रॉस 150 मिलियन US डॉलर मार्क बाय 2026। और जो 2020 में असेसमेंट किया गया है वो 77 मिलियन US डॉलर्स का है। तो यदि हम 2015 से देखें, 2015 से 2020 में 5 साल में लगभग डबल हो गया, 77 हो गया। तो एनुअल ग्रोथ रेट करीब जो है 14-15% के आसपास की एनुअल ग्रोथ रेट से हुआ। यदि इसको देखेंगे हम तो एनुअल ग्रोथ रेट में, या फिर ये कहेंगे कि 5 साल में डबल हो गया। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी बोलिए, बाद में बात कीजिए प्लीज। होते हैं वर्म के कॉस्ट यदि बात बताऊं मैं आपको, तो यदि वर्मी कंपोस्ट 10 रुपए किलो बिक रहा है तो वर्म जो है वो करीब 300-400 रुपए केजी बिकता है। तो वर्म कल्चर इटसेल्फ जो है उसमें भी काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये नहीं सोचिए कि हमारा छोटा यूनिट यदि है तो हमारा किसी काम का नहीं है। आप छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर भी जो है बड़ा बना सकते हैं और एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसको रजिस्टर करके आप एक बड़ी यूनिट बना लीजिए, तो उससे आप जो है बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आप ले पाएंगे, आपके पास में क्वांटिटी लार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट के बाद में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए सर, थोड़ा सा जो है तो मैं बंद कर देता हूँ। जो है ये शेयर हो गया होगा? शेयर हो गया, मैं यहाँ से हाँ देख लीजिए, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शेयर नहीं हुआ होगा। शेयर हो गया ना? अच्छा, तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसकी मार्केटिंग के लिए क्या पोटेंशियल है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो वर्मी कंपोस्ट का मार्केट है ये एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता हुआ मार्केट है और लगभग हर 5 साल में ये मार्केट जो है डबल होते जा रहा है। और आगे भी इसके इसी प्रकार के प्रोजेक्शंस हैं
कि जो 2020 में जो इसका मार्केट था उसका असेसमेंट लगभग $77 मिलियन US डॉलर्स के का वैल्यूएशन था, और ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में इट विल टच अराउंड 151 मिलियन US डॉलर्स। सो मतलब ऑलमोस्ट डबल जैसा हो जाएगा। तो करीब एनुअल ग्रोथ रेट की यदि हम बात करें तो करीब 12% के आसपास से इसका मार्केट बढ़ने की संभावना है। तो ये, और इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि इतना बड़ा मार्केट है, और हो सकता है कि यदि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लार्ज बहुत बड़े कॉमर्शियल स्केल पे सप्लाई करने के लिए यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें एक जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बनाकर बहुत सारे लोग मिलकर उसको एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, और सबका स्मॉल क्वांटिटीज मिला के काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और उसको फिर जो है आप लार्ज स्केल पे सप्लाई के लिए भी आप कैपेबल हो जाएंगे। और नॉट ओनली सिर्फ आप कंपोस्ट बेचने में इंटरेस्टेड रहिए, आप कोशिश कीजिए कि आप वर्म को भी वर्म कल्चर करके भी आप पैसे कमा सकें उससे। और क्योंकि वर्म का जो कॉस्ट है मैंने बताया करीब 300 से लेकर 500 रुपये किलो के आसपास तक जो है वर्म का कॉस्ट होता है। और कहीं किसी ने पूछा था कि वर्म कहाँ मिल जाएगा, तो वर्म जो है किसी के पास से भी आप ले सकते हैं जो सही वर्म का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस से भी आपको वर्म मिल सकता है। इसके अलावा भी यदि किसी प्राइवेट ग्रोअर को आप जानते हैं तो उससे भी आप वर्म लेके चालू कर सकते हैं। तो यदि हमारे संस्थान से लेना है तो हमारे संस्थान में 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वर्म मिलता है, और उसका आप हमारे निदेशक जो है डायरेक्टर को चिट्ठी लिख के उनसे जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमको वर्म चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए वो बता सकते हैं। तो जब आप अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फिर आपको एक रिप्लाई जाएगा कि हाँ कब आपको अवेलेबल होगा, उस समय में आपको आके उसका पैसा जमा करके आप वर्म ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है हमारे यहाँ, और 300 रुपये प्रति किलो में हम लोग वर्म देते हैं। तो कौन कर सकता है वर्मी कंपोस्टिंग जो है, फिर सवाल आया कि भी कौन कर सकता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा जिसके पास में वेस्ट मटेरियल अवेलेबल हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वेस्ट मटेरियल अवेलेबल हो, और जो डिस्पोज ऑफ कर रहा हो, जिसको कहीं फेंकने की समस्या आ रही हो कि ये तो मेरा वेस्ट है इसको मैं फेंक रहा हूँ, तो ऐसी जगहों पे जो वेस्ट अवेलेबल है या तो वो स्वयं करने लगे, या फिर जो है आप उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्शन यूनिट बनाकर आप उसको कलेक्ट करके आप भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि, लेकिन इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई मैं ही कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्मी कंपोस्ट कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको की टेक्निक आती हो, वो उस वर्मी कंपोस्ट को प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें कोई ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं आता है। जब मार्केटिंग करने जाएंगे तो शायद थोड़े बहुत जो मार्केटिंग करने के लिए जो लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं वही आएंगे, लेकिन प्रोडक्शन के लिए ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। और इसको जो है बहुत सारे बिजनेस जो इंस्टीट्यूट्स हैं, फार्म्स हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ पर जो है जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में है वहाँ पर जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है। और जो नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसको अपने वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं, और उस वेस्ट को यूटिलाइज करके लोग जो है कंपोस्टिंग कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। और अभी की स्थिति में तो बहुत सारे जहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहाँ पर कि उनका अपना इंस्टीट्यूट के अंदर में जो है कंपोस्टिंग यूनिट्स हैं, और वो अपना वेस्ट खुद ही जो है रिसाइकल करते हैं, और जो रिसाइकल होने के बाद कंपोस्ट मिलता है उनको, उसको अपने ही इंस्टीट्यूट के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा भी देखा जा रहा है। और जो मटेरियल है, मटेरियल को आप कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उठा के लेके जाना है और कहीं ले जाके ही आपको कंपोस्टिंग करनी है। आप मटेरियल को उस जगह पे भी कंपोस्टिंग कर सकते हैं जहाँ पर था, वहीं पर छोटा सा यूनिट लगा के आप
कर सकते हैं, या फिर एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट करके आप उसको वहाँ पे आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस स्केल पे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका जब आप बहुत बड़े एरिया से कलेक्ट करके उसको करते हैं तो सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी में जाके काम करते हैं। अदरवाइज छोटे स्केल पे जो है वो ऑन साइट ही जो है मोस्टली किया जाता है। और इसके अलावा जो है जो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत फूड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे रेस्टोरेंट हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, होटल्स हैं, ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पर कि बहुत वेस्ट जनरेट होता है, जो मंडी होती हैं यहाँ पे कि बहुत सारा जो है फ्रेश वेजिटेबल्स का वेस्ट जनरेट होता है, रिसोर्ट्स हैं और ऐसे ऑफिसेस हैं जहाँ और डाइनिंग फैसिलिटीज़ जहाँ पर कि बहुत सारा वेस्ट आता है, कलेक्ट होता है, तो उन जगहों पे भी किया जा सकता है। ऐसे ऐसे जगह जहाँ पर कि फूड वेस्ट के साथ और इसको हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेल हैं, मिलिट्री बेस है ना, तो गवर्नमेंट सेंटर्स है, तो ये जहाँ है वहाँ पर किसी भी रूप में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि कोई भाई यहाँ ये हॉस्पिटल है तो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने में ना तो किसी प्रकार की कोई गंदगी है ना कोई चीज़ है। आप बहुत ही आसानी से साफ सुथरे ढंग से इसको आप कंपोस्टिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा जो है जो फार्मर्स हैं, फार्मर लेवल पे भी आप जिनके पास में वेस्ट अवेलेबल है और काउडंग भी अवेलेबल है, वो लोग भी इसको आराम से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज कौन करेगा, ये भी सवाल आता है। तो कहाँ पे यूज होगा, किसको आप बेचने जाएंगे? तो जैसा मैंने बताया बहुत बड़ा मार्केट है, जो एक तो घर पे ही अपने स्वयं के घर पे हम यूज कर सकते हैं, या लोगों के घर में होम गार्डन्स होते हैं उसमें यूज होता है उसमें। और काफ़ी पैकिंग करके जो है जो छोटे स्मॉल क्वांटिटीज़ में लोग खरीदते हैं, वहाँ यूज़ होता है। जो नर्सरीज़ हैं जो लार्ज स्केल पे जो है परचेज करती हैं, जो कि सीडलिंग्स तैयार करते हैं, वो इसके बायर्स हैं। आप जहाँ पे आप मतलब वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं उसके आसपास यदि नर्सरीज़ हैं, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए, उनसे आप अपना जो है रिक्वायरमेंट ले लीजिए कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है, सप्लाई करेंगे आपको। तो उस तरीके से भी आप, क्योंकि नर्सरीज में यदि अच्छी नर्सरी है तो उसको बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट नर्सरीज भी हैं बहुत सारी जिनको कि आप सप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे जो है लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको कि लार्ज स्केल पे जो है वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज में जो है जहाँ पे गार्डन्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उनमें भी जो है बहुत लार्ज स्केल पे लगता है वर्मी कंपोस्ट का यूज़ होता है। ग्रीन हाउसेस हैं उसमें जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ होता है। गार्डन के जो मटेरियल बेचने वाले स्टोर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए कि भैया हम आपको वर्मी कंपोस्ट में हमारा इस पैकेजिंग करके ये देंगे, तो वहाँ से भी जो है वो आउटलेट्स पे भी जो है के थ्रू बेच सकते हो आप। फ्लावर शॉप्स होते हैं या फ्लोरिकल्चर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास भी बहुत बड़ा जो है स्कोप होता है इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए। इसके अलावा जनरल पब्लिक जो है उनको भी आप अपना प्रोड्यूस बता के बेच सकते हो। तो ये पोटेंशियल यूजर्स हैं। इसके जरूरी नहीं कि इतने पे सीमित हो, इसके आगे भी आपको जो बाहर मिल रहा है वो आपका यूजर है। तो ये कुछ मैंने बताए हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जहाँ पे जिनको कि आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा जो है जो फार्म लेवल पे हम कर रहे हैं, तो हम यदि मान लीजिए हमारा मटेरियल मार्केट में नहीं जा पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम अपना खुद के लिए यूज नहीं कर सकते। हम खुद के फार्म पे भी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं उसको। और ये कंपोस्ट एक ऐसा कंपोस्ट नहीं है कि ये जो है तुरंत खराब हो जाने वाला चीज हो, ऐसा नहीं है। इसको आप यदि आइडियल कंडीशंस में सेफली आप इसको स्टोर कर लेंगे
तो इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती समय के साथ में। तो ये इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं और डिमांड आने पे बेच सकते हैं बाद में, वो चीज़ भी है। उसको अच्छे तरीके से पैकिंग करके आप एक अपना स्टैंडर्ड पैकिंग तैयार कर लीजिए, उस पैकिंग के साथ में जो है ब्रांडिंग कर लीजिए, तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन और उसका कर लेंगे तो अच्छे तरीके से आप उसको कर पाएंगे। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खराब हो जाए, खराब होने वाली चीज़ नहीं है। आपका कंपोस्ट तैयार हो गया, इमीडिएटली मार्केट में जाने लायक नहीं है, आप उसको स्टोर कर लीजिए, स्टोर कर सकते हैं। बस ये है कि स्टोर करते वक्त थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि उसको जो है आपको धूप में ले फेंक दिया आपने, ऐसा नहीं चलेगा। उसको आपको कूल प्लेस पे, ड्राई प्लेस पे, शेडेड प्लेस पे थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको। तो ऐसी जगह पे आपको रखना है, थोड़ा कूल हो, हल्का सा थोड़ा मॉइस्चर भी हो वहाँ पर, और शेडेड हो, डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज नहीं हो रहा हो, या एकदम ड्राई कर दे आपके मटेरियल को, ऐसा जगह नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे आप रखने के बाद में भी इसको सप्लाई कर सकते हैं। और जितने आपको मैंने यूजर्स बताए हैं, इसके अलावा भी यदि कहीं यूजर आपको मिल रहा है तो आप उसमें जाके बेच सकते हैं अपना प्रोड्यूस। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं। और लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप उसको किस स्तर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, किस तरीके से अपने प्रोड्यूस को मार्केट करते हो। तो इनमें से आपका कोई भी एक आपका यूजर हो सकता है ना। आप किसको टारगेट कर रहे हो, उस टारगेट ग्रुप के हिसाब से आप मटेरियल तैयार करोगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। इसमें भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, उस प्रकार से आप किसी भी नर्सरी का टाई अप करके जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि हाँ आपको आपकी रिक्वायरमेंट ये है, हम आपको इतना मटेरियल सप्लाई करेंगे। और डेफिनेटली ये होता है कि हर जगह कंपटीशन होता है, प्राइस कंपटीशन। जैसे मान लीजिए कोई 12 रुपए किलो, आप यदि देखेंगे नेट पे भी सर्च करेंगे तो 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, अलग अलग उसका जो है रेट है। तो आप भी अपना प्रोडक्ट को ब्रांड करके अपना जो है एक अच्छा उसको पैकिंग और सारी चीज़ें करके आप उसको बना सकते हैं। और यदि नहीं भी यदि सेल आउट हो रहा है तो आपके पास में अपना खुद का रिक्वायरमेंट भी होगा जो ग्रो करता है। यदि वो फार्मर है तो वो अपने फार्म पे भी उसको अप्लाई कर सकता है, तो उसका जो दूसरा अदर एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसके बच जाएंगे जो फर्टिलाइजर्स पे होता है। और डेफिनेटली जब आप वर्मी कंपोस्ट अपने खेत पे भी डालेंगे तो उसका जो सॉइल, आपका सॉइल हेल्थ है उसका इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बेनिफिट उसमें मिलेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हैं कि किस प्रकार से स्टेप वाइज जो प्रोसेस होती है उसको किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। और इसके साथ में जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि आप एड ऑन जो बोलते हैं ना, एड ऑन भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में कर सकते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट एक चीज़ हो गया, वर्म कल्चर आपका जो वर्म मदर कल्चर जो है। तो ये देखिए दोनों चीज़ में क्या है कि एक आपका मेन प्रोडक्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है, और दोनों वैल्यूएबल है। इसके अलावा जो है जो एक वर्मी वॉश होता है जो कि इसी मेथड के दौरान जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और उसका भी जो है फाइटोटॉनिक इफेक्ट जो है जो प्लांट टॉनिक के रूप में यूज होता है वो भी है। और उसका कुछ जो है मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि उसको कैसे आप जो है रिपेलेंट के रूप में, ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसके विषय में बताऊंगा। और जब आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो आप उसके साथ में ये कर सकते हैं कि जो कंपोस्ट के साथ जो जहाँ पिट आपने लगाई है तो अलग अलग लेवल की पिट होती हैं, है ना। लो कॉस्ट मेथड होते हैं, एक होता है लार्ज यूनिट होती हैं। तो और प्रोडक्शन लेवल भी जो है अलग अलग लेवल के होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाँ किस लेवल पे काम हो रहा है, क्या होना है, किस लेवल पे कितना वॉल्यूम जो है कंपोस्ट का बनाते हैं, क्या 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 मेथड होता है कि पिट मेथड क्या है, बेड मेथड क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल के लो स्केल क्या है, हाई स्केल क्या है ना, वो सारा चीज़ जो है हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
और लेकिन जैसे जो बेड आपने यूज़ किया है जहाँ पे भी आप बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें जो है कुछ जब वाटरिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत वाटर उस बेड में से बाहर आता है। तो जब इसको हम लेआउट करते हैं किसी भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को, तो अलग अलग मेथड की यूनिट होती हैं, उनका मैं बताऊंगा किस प्रकार से होगा। लेकिन उसमें जो है चैनलाइजेशन इस प्रकार से करते हैं कि जो एक्सेस वाटर होता है जो कि आपकी यूनिट से निकल के आ रहा है, तो वो जाके हमारे एक ऐसी सेंट्रल यूनिट पे जाके कलेक्ट हो जाए कि वो वाटर जो है हमारा वेस्ट ना जाए। क्योंकि वो जो वाटर निकल रहा है वो गोल्डन ब्राउन कलर का वाटर होता है, जो कि बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। इसके साथ में उसमें वर्म का वॉश भी होता है साथ में, क्योंकि वाटर एप्लीकेशन होकर जो वर्म वॉश होके जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी साथ में होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो वॉश कलेक्ट हुआ है, उस वॉश को भी हम यूज़ करेंगे यदि, तो वो जो है एक प्लांट टॉनिक के रूप में काम करेगा। फोलियर स्प्रे उसका किया जाता है, करीब 10% का जो है उसका स्प्रे किया जाता है, और उसके बहुत अच्छे जो है प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने वाले रिजल्ट उसमें बहुत सारे हैं। कहीं भी आप यदि उसका लिटरेचर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो वर्मी वॉश का यदि एप्लीकेशन किया है तो प्लांट ग्रोथ में काफ़ी अच्छा जो है पॉजिटिव इफेक्ट मिला है। और इसके अलावा जो है उसके और भी मेथड हैं जिनको आप यूज़ करके उसको एज ए प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको जो है काउ यूरिन के साथ मिक्स करके जो है प्रिवेंटिव स्प्रे जैसा यूज़ कर सकते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट रिपेलेंट जैसा काम करता है। इवन इसके साथ में यदि हम नीम लीफ और कुछ दूसरी चीज़ें मिला लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा यदि आप फर्मेंट करके यदि यूज़ करते हैं, तो दे ऑल बिकम जो है एक तो न्यूट्रिएंट रिच और रिपेलेंट टाइप की काम करते हैं। तो आपको प्लांट प्रोटेक्शन का भी काम करके देगा, और साथ में आपको एक जो ग्रोथ प्रमोटर जो काम करता है वो एक्शन भी होगा। तो डबल बेनिफिट मिलेगा आपको। साथ ही साथ क्या होगा कि जब आप कंपोस्ट यूज कर रहे हैं या वर्मी वॉश यूज कर रहे हैं या काउ यूरिन का यूज कर रहे हैं, तो वो ये सारी चीजें जो है आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कहीं ना कहीं कम करेंगी, क्योंकि आपका डिपेंडेंसी ऑन आउटर जो बाहर से लाके आप रिसोर्स यूज करते हैं, डेफिनेटली उस रिसोर्स पे आपकी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये एडवांटेज आपको इस तरीके से मिल जाता है। तो ये भी कर सकते हैं। और हम लोग कितने लेवल होते हैं, जैसे लेवल की बात करें हम, तो एक होता है स्मॉल स्केल पे जो प्रोडक्शन किया जाता है। तो स्मॉल स्केल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है वो आपको मैं कल डिटेल बताऊंगा। लेकिन स्मॉल स्केल का प्रोडक्शन जो किया जाता है, तो वो फार्मर या स्मॉल स्केल पे प्रैक्टिस करते हैं या हाउस होल्ड लेवल पे क्या करते हैं, और उसका पर्पस जो होता है वो मेनली कॉमर्शियल नहीं होता, वो अपने हाउस होल्ड की या फार्म लेवल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो वो स्मॉल स्केल कंपोस्टिंग होती है, वर्मी कंपोस्टिंग होती है। दूसरा ये होता है कि जो मीडियम स्केल पे जिसके पास में थोड़ा ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, तो उसके पास में ऑप्शन होता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, मार्केट में भी यदि कुछ बेच सकता है। तो इस प्रकार का जो ये फैसिलिटी होती है उसको मीडियम साइज की होती है, और उसमें दोनों तरफ यूनिट काम करती है कि कुछ एक्सेस यदि हो गया तो अपने फार्म पे यूज़ कर लिया, कहीं मार्केट में डिमांड मिल गई तो मार्केट में बेच दिया, और पैसा अर्न कर लिया। तो दोनों प्रकार का काम करता है। और जो लार्ज स्केल की या हाई वॉल्यूम जो कैपेसिटी वाली यूनिट्स होती हैं, तो वो जो यूनिट होती हैं वो यूनिट प्योरली कॉमर्शियल लेवल पे काम करती हैं। और उसमें जो है जब आप कॉमर्शियल लेवल पे कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा अच्छा मैकेनाइज्ड यूनिट्स होती हैं, और उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी कम होता है। और इसके अलावा जो है
जब बड़ी यूनिट होगी तो डेफिनेटली मार्केटिंग वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करेगी। तो वो सारे चीज़ें जो है, और ये तो डिपेंडिंग अपॉन जो आप प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से हुआ। प्रोडक्शन का मेथड जो आप यूज़ कर प्रोडक्शन के जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको जो है, जैसे बेड मेथड होता है एक, तो बेड मेथड में आप सिर्फ शेड बना लेते हैं और बेड पे ही मतलब उसी का फ्लोर जो है थोड़ा आप कॉम्पैक्ट करके कि वर्म उसमें जो है मिट्टी में भाग नहीं पाए, उस तरीके से करके आप जो है बेड मेथड को अडॉप्ट करते हैं और लो कॉस्ट पे और लो वॉल्यूम पे इस मेथड को नॉर्मली प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये बेड मेथड होता है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि कॉस्ट को लो रखना है और स्मॉल स्केल पे हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड जो होता है वो पिट मेथड होता है, और पिट मेथड में जो है पक्के पिट्स बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स उसमें कवर्ड होता है, शेड होता है, और उसमें जो है लार्ज स्केल पे फिर जो है जितना बड़ा फैसिलिटी होगी उसके हिसाब से नंबर ऑफ पिट्स को घटाया बढ़ाया जाता है और उसमें जो है फिर वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। और कितने आपको पिट बनाने हैं, साइज, डायमेंशन, सारी चीज़ें जो है हम लोग कल जब डिस्कस करेंगे इस चीज़ को आगे, तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस साइज की पिट बनाएंगे, कितना डायमेंशन होना चाहिए, कितना उसमें एरेशन के लिए स्पेस रखना है, और क्योंकि और क्या प्रिकॉशंस रखना है आपको वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए, क्या करने से आपका कंपोस्ट जो है खराब हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके, वो सारी चीज़ें आपको हम कल जब हम डिस्कस करेंगे इसको आगे, तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इतने पार्ट में यदि आप लोग को कोई चीज़ लग रहा है तो इसमें आप जो है डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें इतने पार्ट में कोई चीज़ आ रही है कि हमको इसमें ये परेशानी लग रही है या ये चीज़ है, तो वो पार्ट अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपको अभी यहाँ पर आपको मौका दे रहा हूँ मैं कि आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं इनको। मैं आपको हाँ हो गया प्रेजेंटेशन? हाँ, ये प्रेजेंटेशन अभी का पूरा हो गया है। आप क्या करिएगा, यहाँ से चालू करिए ऐसे, ओके, ठीक है, ऊपर से पढ़ती जाइए। हाँ ठीक, एक एक करके। अच्छा, ये इनका नाम पता नहीं लग रहा है, इन्होंने उसमें दे दिया, इन्होंने नाम दे दिया है। देखिए मैं इनके नाम से बता दूं इनको, है ना, वो ठीक रहे। तो ये मलाज खंड से इन्होंने लिखा हुआ है कि केचुए के संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, केचुए की संख्या बढ़ाने के लिए आपको हेलो, हाँ क्या बोलना बताइए, जल्दी से बता दीजिए। बाद में बात कीजिए, बाद में बात कीजिए। तो केचुए की संख्या बढ़ाने के लिए देखिए, आपको एक तो उसका जहां आप रख रहे हैं उसका जो हैबिटेट है वो अच्छा होना चाहिए, उसका फूड मटेरियल जो है वो प्लेंटी में अवेलेबल होना चाहिए, और जो कंडीशंस हैं जो वर्म के मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन है वो जो है ऑप्टिमल होना चाहिए। जैसे कि आपका जो मटेरियल है उसमें एक चीज़ हो गया कि वाटर स्टेग्नेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो टेम्परेचर है वो अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, तो बहुत तेज मल्टीप्लाई करता है वर्म, है ना। और आप ये देखेंगे जितना आपने वर्म रिलीज किया है, यदि उसको आप करीब 1-1.5 महीने बाद देखेंगे तो उससे डबल वर्म हो जाएगा तब। और इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, देखिए वर्म जो है, वर्म हर्माफ्रोडाइट होता है, और उसका जो हर 8 से 10 दिन में जो है एक कोकून वो देता है वर्म। तो एक कोकून के अंदर जो है 6-7 वर्म होते हैं, और वो जो है एक हफ्ते जैसा जो है उसका, यदि आइडियल कंडीशन चल रही है
तो 1 हफ्ते में उस कोकून से जो है वर्म निकल आते हैं। तो यदि आपका जो कंडीशन है आइडियल है, मॉइस्चर कंडीशन अच्छी है और उसमें जो है टेम्परेचर आपका आइडियल कंडीशंस पे है, तो वो यदि आप ये सारी चीज़ें आपने मेंटेन की हुई हैं जो, और जो सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, यदि आपको सिर्फ वर्म मल्टीप्लाई ही करना है तो आप ये कर सकते हैं कि जो दूसरा वेस्ट है वो उसका मात्रा थोड़ा सा, जो सबस्ट्रेट मतलब जो फीड का जो है उसका रेशो, आप उसमें गोबर का रेशो थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो तेज हो जाएगा, ये देखा गया है। बाकी उसमें आप जो अदर रेसिड्यूज हैं उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए रेशो में, तो आपका जो वर्म का मल्टीप्लिकेशन यदि आपको करना है तो वो तेजी से होगा। एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको टेम्परेचर, जो सबस्ट्रेट है उसका टेम्परेचर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। सबस्ट्रेट का यदि आप उसको चेक कर रहे हैं, हाथ आपने उसमें डाला सबस्ट्रेट में, और यदि आपको गर्म लग रहा है तो डेफिनेटली उसमें आपको वर्म नहीं छोड़ना है, नहीं तो वर्म की संख्या बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। तो सबस्ट्रेट को अच्छे से तैयार करके, और यदि वर्म मल्टीप्लाई करना है तो आपको बेड का जो मोटाई है उसको थोड़ा कम रखना पड़ेगा। 1 फीट जैसी बेड आप रखेंगे, ऊंचाई रखेंगे, तो वर्म मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ज़्यादा अच्छा हेल्प होगा उससे, क्योंकि एरेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वर्म काम करेगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप केचुए की संख्या जल्दी बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो है आपका इसिना फेटिडा वर्म मार्केट में मिलता है क्या? डेफिनेटली मिलता है। आप क्योंकि आपने इसमें लिखा नहीं कि आप कहाँ से हैं, यदि आप भोपाल के आसपास हैं तो हमारे संस्थान में आके ले सकते हैं, और यदि कहीं और है तो डेफिनेटली फिर आपको उस जगह का जो है आपको फैसिलिटी देखना पड़ेगी कि वहाँ पर कहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इसिना फेटिडा आपको मिल जाएगा हमारे संस्थान से। हमारे संस्थान के ने कुछ फार्मर्स को भी जो है इसमें ट्रेंड किया हुआ है, और वो लोग भी कॉमर्शियल लेवल पे इसको करते हैं और बेचते हैं। तो यदि आपको वहाँ से परचेस करना है, हमारे संस्थान से 300 रुपये किलो मिलता है, फार्मर लोग जो है 500 रुपये किलो के आसपास मार्केट में बेचते हैं, 400-500 उनका रेट रहता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मनीषा पाटीदार जी लिख रही हैं, सर वर्मी कंपोस्ट कितने टाइम पर पूरे तरीके से रेडी हो जाता है? देखिए, कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट आपका जो है तैयार होने का जो प्रोसेस है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपने कितने मटेरियल में कितना वर्म छोड़ा है, जो मटेरियल आपने तैयार किया है उसका कंपोजिशन क्या है, पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल है, उसमें जो है आपने काउडंग का और दूसरे जो वेस्ट है उसका रेशो क्या रखा है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन यदि 1:1 का रेशो है, मतलब 50-50% दोनों मटेरियल आपने मिलाया है, और उसमें जब आप वर्म रिलीज करने के बाद करीब 60 से 75 दिन आपको लगना चाहिए। और इसको आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि आप हम क्या करते हैं कि हमने वर्म रिलीज कर दिया, बेड बनाया, वर्म रिलीज कर दिया, भूल गए। ऐसा नहीं होता है, उसकी आफ्टर केयर भी बहुत सारी होती है, टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है, टर्निंग करना पड़ती है। तो वो सारी जो प्रोसेस है वो मैं आपको कल बताऊंगा कि वो कौन कौन सी प्रोसेस आपको करना पड़ेगी, और उसको करने के बाद में फिर कितने दिन में तैयार होगा। वैसे 60 से 75 दिन में लगभग तैयार हो जाता है। एक सवाल ये है कि रेडी होने के जस्ट बाद में ही हम वर्मी कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं या कुछ टाइम बाद यूज किया जा सकता है? तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट जब आपका तैयार हो गया तो आप तैयार होने के तुरंत बाद उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खराब होने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें कि आपको तुरंत यूज करना है। इसको यदि आपको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसको आपको खुली धूप में नहीं छोड़ना है। यदि खुली धूप में छोड़ेंगे तो एकदम सूखेगा, और जो नाइट्रोजन पर्टिकुलरली जो है वो उसमें से लॉस हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि यदि आपको स्टोर करना है तो आपको ठंडी थोड़ी नमी वाली जगह पर आप इसको स्टोर करके रखें, ढक के, गनी बैग से ढक के रख दीजिए। तो ये आपका 2-3 महीने आप आसानी से इसको आप स्टोर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।
केचुए के लिए किस प्रकार का एटमॉस्फेयर चाहिए? मैंने बताया था कि जो आपको कंपोस्टिंग यूनिट है वो कहाँ लगाना है ना, कैसी जगह पे लगाना है। तो मैंने बताया था कि उसको आपको छायादार जगह होना चाहिए, थोड़ी नमी वाली जगह हो, और उसको आपको एक शेड बनाना पड़ेगा ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट और जो बारिश में तेज बारिश से उसको बचाना है। इसके अलावा जो है आपको बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं जो मैं कल फिर से बताऊंगा वैसे, लेकिन जो परजीवियों से, चींटियों से और मुर्गे मुर्गी से, इन सब चीज़ों से जो उसको नुकसान करने वाले हों, उनसे आपको इसको बचाने की आवश्यकता पड़ेगी, और उन सब चीज़ों को बचा के ही आप उसको जो है आप अच्छे से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो एटमॉस्फेयर की बात है तो आपको थोड़ा सा ह्यूमिडिटी थोड़ी हाई हो, 70-80% ह्यूमिडिटी यहाँ पर है, और टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री का सबसे आइडियल माना जाता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्टिविटी ज़्यादा होती है वर्म की। तो इस प्रकार का एटमॉस्फेयर यदि होगा तो डेफिनेटली आपका जो वर्म का मल्टीप्लिकेशन है वो काफ़ी फास्ट रेट पे होगा। बहुत लो टेम्परेचर होगा या बहुत हाई टेम्परेचर होगा तब आपको इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो भी वर्म मरेगा, और उसको फ्रीक्वेंट पानी वाटरिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब टेम्परेचर हाई हुआ तो वर्म मर ही जाएगा, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा है, आइडियल जो होगा वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मल्टीप्लिकेशन और सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। इससे ऊपर या नीचे टेम्परेचर जा रहा है तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। आकाश वर्मा जी का एक सवाल है कि इज देयर एनी ट्रेनिंग सेशन अवेलेबल फॉर वर्मी कंपोस्ट एंटरप्रेन्योरशिप? तो देखिए, आप ऑलरेडी एक ट्रेनिंग कर रहे हैं मुझे लगता है, और इसमें इसी ट्रेनिंग के दौरान आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई सेशन होगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा। लेकिन मैंने भी थोड़ा सा कोशिश किया है कि आप कहाँ कहाँ पे इसको बेच सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो वो सारा चीज़ें जो है एंटरप्रेन्योरशिप को ही के लिए ही होता है कि ये सारी चीज़ें करके, और मैंने आपको इसमें सारे कहाँ कहाँ आप इसको मार्केट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए परफेक्टली जो है कुछ अलग से कोर्स होते हैं, उसके बारे में नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जितना इस ट्रेनिंग के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं कि कहाँ कहाँ आप कैसे प्रोडक्शन कैसे करना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे जो क्वेरीज हैं उनका जवाब मैंने दे दिया है। फिर भी यदि और कुछ बची होंगी तो कल आप इस जो सेशन होगा उस सेशन को आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपके सवालों का जो बचे हुए सवाल हैं उसका जवाब मुझे लगता है मिल जाएगा। यदि अच्छा है, अदिति मिश्रा जी का सर मैंने ओनली कंपोस्ट में तरबूज और खीरा का बीज बोया हुआ है, तो बीज कितने दिन में निकलेगा? देखिए, जब कंपोस्ट में यदि आपने प्योर कंपोस्ट में बो दिया है तो थोड़ा सा क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा आपको लगाना होगा, क्योंकि पानी कंपोस्ट में जो है पानी कम रुकता है, ये देखा गया है तेजी से थोड़ा सा, क्योंकि ड्रेन आउट हो जाता है पानी। थोड़ा पानी उसको देते रहिए। नॉर्मली जो जो सीड का इमरजेंस है उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जो नॉर्मल निकलता है लगभग उसी टाइम पे वो निकल आएगा। जर्मिनेशन पे कंपोस्ट पे आपने जब तक कि आपने कोई रॉ कंपोस्ट पे नहीं लगा दिया हो, है ना, यदि रॉ कंपोस्ट पे लगाया है तो फिर देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके बाद तो हो जाते हैं कि उसमें कितना पैथोजन था, क्या था, क्या नहीं था। लेकिन यदि आपने अच्छे मैच्योर्ड कंपोस्ट पे लगाया है तो नॉर्मल जैसा निकलता है वैसे ही निकल के आ जाएगा। मनीषा रंगडाले जी का सवाल है कि वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार लाभदायक होता है, जिसका उपयोग किस प्रकार कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए? देखिए, आप कौन सी फसल के लिए उपयोग करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कितनी मात्रा में देना है। तो यदि आप
किसी हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग क्रॉप पे दे रहे हैं तो आपको मात्रा ज़्यादा देना पड़ेगी, किसी लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग क्रॉप पे आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो मात्रा कम लगेगी। तो इसके वैसे नॉर्मली जो है 8 से 10 टन जो है रिकमेंड किया जाता है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि किस फसल के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसी के हिसाब से उसकी मात्रा को आपको निर्धारित करना होगा। आंख बंद करके आप उसके नहीं बोल सकते कि इसमें इतना मात्रा दे दीजिए, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ दैट क्रॉप, पर्टिकुलर क्रॉप को ध्यान में रखना होगा। तो उस हिसाब से आप मात्रा को निर्धारित कीजिए। आप इसको निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता है कि आपके वर्मी कंपोस्ट में यदि 1% या 1.5% नाइट्रोजन है, और यदि मान लीजिए 1% है और आपको 100 किलो आपको नाइट्रोजन देना थी क्रॉप को, तो ये मान लीजिए कि आपको करीब 10 टन देने से आपका काम चल जाएगा, है ना। 10 टन जब आप देंगे तो 100 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी 1% होने से। तो इस प्रकार से आप जो है उसको क्वांटिटी को वर्कआउट कीजिए, तो तब आप जो है ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। कृषि में भी यूज किया जा सकता है, मतलब खेत में बिल्कुल किया जा सकता है, काफ़ी लाभदायक होगा। लेकिन यदि आप इसको सिर्फ इसको लो जो बोलते हैं लो हाई वैल्यू क्रॉप या लो वैल्यू क्रॉप पे यदि कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं तो उतना मतलब बाहर बेचने में आपको ज़्यादा फायदा होगा उस हिसाब से। तो क्योंकि यदि आप हाई वैल्यू क्रॉप पे यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये कहा जाता है, इकोनॉमिक रिटर्न ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे खेत में कीजिए, नर्सरी में कीजिए, चाहे जहाँ यूज करना है कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। आप सवाल जो है ये है कि सर मैंने देखा है कि हमारे गांव में एक गड्ढा करते हैं और उसमें गोबर भर देते हैं और उसके ऊपर किसी भी तरीके का ढक्कन उस पर ढक देते हैं, जो कि गोबर में जो गैस बन रही है उसको रोका जा सके। यह किस तरीके से संभव है? देखिए, जो गैस बन रही है तो जो आपने गोबर गैस के प्लांट देखे होंगे ना, तो ये जो गैस बन रही है उसको रोकना है तो आपको गोबर गैस प्लांट में चले जाइए, आराम से जो है आपको उसमें जो गैस बन रही है उसको आप यूज करके जो है आप जो गोबर गैस का जो चूल्हा होता है उसमें यूज कर सकते हैं, लाइट में यूज कर सकते हैं, और जो स्लरी निकलेगी उसको दोबारा आप उपयोग में कंपोस्टिंग में उपयोग में ला सकते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन उसको रोकने का तरीका एक ही है कि आप उसको गोबर गैस प्लांट जो होता है वो लगाइए, तभी रुकेगा, दूसरा तरीका उसमें नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। मनीषा रंगडाले जी का सवाल था कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये कल के जो सेशन होगा उसमें ये सारी चीजें आएंगी, है ना। तो क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे उसको ठीक करना है, समस्याएं क्या आती हैं प्रैक्टिकली, वो सारी चीजें मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको आपको करना है। डॉक्टर निशा जी का सवाल है कि कैन वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग फॉर ए स्मॉल किचन गार्डन? ऑफ कोर्स वी कैन यूज, लेकिन आपको देखना वही है कि स्मॉल आप किचन गार्डन के लिए यूज कर रहे हैं, खुद का यूनिट लगाना चाहते हैं तो जितना आपका किचन वेस्ट है उसको यूज करते हुए आप बना सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, और अदरवाइज आप जो है मार्केट से परचेस करके लाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप यदि डिपेंड करता है कि आपका किचन वेस्ट कितना है या हाउस होल्ड वेस्ट कितना आ रहा है, आप उनको यूज करते हुए आप डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप किस जगह पे किचन गार्डन में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। और जितना आपका होम वेस्ट है उसको आप यूटिलाइज कीजिए, बहुत अच्छी बात है। ये मुझे शैलेश बरस्कर जी का सवाल है कि इसकी ट्रेनिंग मिलेगी क्या हमें? तो देखिए, इसकी ट्रेनिंग, ये आप एक ट्रेनिंग ही अटेंड कर रहे हैं मुझे लगता है, और जो मैंने बताया है इसको आप
यदि प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया है और इसको यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बराबर जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा जो है अभी हमारे संस्थान में जो है एक ट्रेनिंग चल रही है, वो भी स्किल डेवलपमेंट जैसी ही ट्रेनिंग है, जिसमें कि हम कुछ पार्टिसिपेंट्स, जिसमें मोस्टली फार्मर्स हमारे पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, तो उनको हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली सारी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन आपको यदि कभी समय मिलता है हमारे संस्थान में आके आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं इस चीज़ को कि किस प्रकार से किया जाता है, और अलग अलग लेवल के मेथड जो बताए मैंने आपको कि बेड मेथड, पिट मेथड, ये डिटेल तो मैं कल बताऊंगा इन सारे मेथड्स की। तो वो जितने मेथड होते हैं सारे मेथड्स पे हम लोग काम करते हैं, और अलग अलग जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उनके साथ में कैसे कंपोस्टिंग करना है, वो सारी चीज़ों को हम जो है ना प्रैक्टिकली हमारे यहाँ आके आप देख सकते हैं, उसमें कोई वैसी बात नहीं है। और यदि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी लेना है तो हमारे वेबसाइट को देखते रहिएगा। उसमें यदि नेक्स्ट ट्रेनिंग जब आएगी वर्मी कंपोस्टिंग की तो आप उसमें अप्लाई कर दीजिएगा, उसमें आपको मौका मिल सकता है यदि आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता है। तो अभी अभी 20 पार्टिसिपेंट्स का एक बैच चल रहा है, जिनको 1 मंथ का जो है ट्रेनिंग उसमें दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है उस चीज़ की, हाँ, मतलब हमारे संस्थान में होती है। तो उसको आप हमारे सब संस्थान की वेबसाइट जो है उसको देखिएगा, यदि आपको उसमें मिलता है, सुटेबल डेट दिखती है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को यदि और कोई सवाल बचा हुआ है, यदि आपको किसी का जो सवाल अभी आप नहीं पूछ पाए हैं तो आप उसमें अभी सवाल पूछ सकते हैं। और यदि अब कोई सवाल नहीं बचा है तो मैं जो है फिर इसको सेशन को जो है ख़त्म करूँगा। तो मुझे लगता है कि अब और कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो हम आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। और कल जो है, कल मैं आपको बाकी अलग अलग मेथड जो होते हैं उनको कैसे करना है, कौन कौन से लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, हर तरीके के मेथड में जो डिफरेंट तरीके से होते हैं, उनको इकोनॉमिक्स किस प्रकार से आपको निकालना है जो एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होता है, और क्या समस्याएं आती हैं उनको कैसे आपको हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें जो है कल के लेक्चर में मैं आपको विस्तृत रूप से बता दूंगा। मुझे पहले आइडिया नहीं था कि आप लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको मैंने शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कल मैं कोशिश करूँगा कि आपको शुरू से ही जो है हिंदी में बताऊँगा सारी चीज़ें। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Yes.